Good morning everyone, welcome back on my YouTube channel. In my last lectures of anatomy and physiology, we learned cell and cell organelle. From today onwards, we are learning tissue. Tissue is the collection of the cells which have similar origin, structure and function is called the tissue. Okay, the cells which have similar origin means embryonic origin, structure and function, that cells work together and perform any specialized activity. That's collection of the cell is called tissue. हमारी बॉडी के अंदर ऐसे सेल्स का ग्रुप जिनका एम्ब्रियोनिक ओरिजिन, जिनका स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन सेम है, वो सभी सेल एक साथ मिलकर किसी स्पेशलाइज एक्टिविटी को परफॉर्म करती है या फंक्शन करती है, इन देश हम बोल सकते हैं फिजियोलॉजी को करती है, तो हम उसको बोलते हैं, इस कलेक्शन ऑफ द सेल्स को बोलते हैं टिश्यू. ओके, टिश्यू में बी सॉलिड, लिक्विड और सेमी सॉलिड. टिश्यू जो होता है सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं या फिर सेमी सॉलिड हो सकते हैं. एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड is the bone. Bone is the one kind of the tissue. Liquid means blood. Blood is also the tissue, means liquid tissue. And semi-solid is the fat. Is the example of semi-solid tissue, that is the fat. It means कि जो tissue हमारी बॉडी के अंदर solid form में भी है, liquid form में भी है और semi-solid form में भी ये present होते हैं. Okay, now on the basis of function, there are the basic four types of the tissue. Now, types of tissue. Okay, there are the basic four kind of the tissue. First one is epithelial tissue. Epithelial tissue. Now, next one is the connective tissue. Third one is muscular tissue. And fourth one is nervous tissue. These are the four kind of the tissues which are present in our body. Epithelial tissues, the tissue which covers our body organs, okay, and linings, form the lining of the hollow organs. Connective tissue is the perform the protective parts of our body. Okay, then muscular tissue means muscles of our body are the muscular tissue. There are the basic three kind of the muscles: skeletal muscles, okay, and smooth muscles, means, and as well as third one is cardiac muscles. And nervous tissue is the part of nervous system which is made up by the nerve and neuroglia cells. Now we are learning first of all epithelial tissue. Okay, epithelial tissue is the present in our body which covers our body organs or surface of our body. Surface of the body organs also form the lining of the hollow organs. This epithelial tissue is also form the duct, even form the glands of our body. जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ये क्या करता है, हमारी बॉडी की सरफेस को इसने कवर करके रखा है, हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स है उसको उसने कवर करके रखा है, लाइक द सीरस मेम्ब्रेन. इसने हमारी बॉडी के जो हॉलो ऑर्गन्स है, लाइक द हमारे एलिमेंट्री कैनाल हॉलो ऑर्गन है, ओके, हमारा स्टमक हॉलो ऑर्गन है, फेलोपियन ट्यूब हॉलो ऑर्गन्स है. तो ये जो हमारी बॉडी के हॉलो ऑर्गन्स है उनकी जो इंटरनल लाइनिंग्स है वो भी क्या है, एपिथेलियल टिश्यू से इसका फॉर्म हुआ है. हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे डक्ट है, ओके, जिसके थ्रू क्या करते हैं, ग्लैंड्स अपने हार्मोन सिक्रेशन करती है, ठीक है, हार्मोन्स को पोर करती है, तो वो भी जो है वो एपिथेलियल टिश्यू के ही मिलकर बने. एज वेल एज हमारी बॉडी की जो ग्लैंड्स है वो भी किससे मिलकर बनी है, एपिथेलियल टिश्यू से ही मिलकर बनी होती है. ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द layers of the cells there are the basic two kind of the epithelial tissue. Now the classification of epithelial tissue, first one is simple epithelial tissue. Simple
epithelial tissue, in the simple epithelial tissue there is the only single layer of the cells. मीन्स अगर हमारी बॉडी के अंदर इपिथेलियल टिश्यू अगर सिंपल लेयर से सिंगल लेयर से अगर बना है तो हम उसको बोलेंगे सिंपल इपिथेलियल टिश्यू. ओके, एंड देयर आर द सब टाइप्स ऑफ सिंपल इपिथेलियल टिश्यू. फर्स्ट वन इज सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियल टिश्यू. Simple squamous epithelium. Simple squamous is the tissue which is there is a single layer of the flat cells or tiles like cells. मीन्स क्या होती है, ये जो सेल्स होती है सिंपल इपिथेलियल सेल्स जो है, आप देखिए इस डायग्राम में कि जो सिंपल सेल्स जो है सिंगल लेयर है. ओके, स्क्वेमस सेल्स जो क्या है टाइल्स लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है. ओके, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर होती है और इसके नीचे क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू होता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज सिंपल क्यूबॉइडल epithelium. Simple cuboidal epithelium means the single layer of cube like cells. जो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है सेल्स का, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम. मीन्स क्यूब जैसा इनकी सेल्स का स्ट्रक्चर होता है. आफ्टर दैट इज द सिंपल कॉलुमिनार इपिथेलियम दैट कैन बी सिलिएटेड और नॉन सिलिएटेड. मीन्स सेल्स का जो स्ट्रक्चर है वो कॉलम्स के लाइक है. ओके, कॉलम लाइक है तो और सिंगल लेयर की बना है टिश्यू, तो हम उसको क्या बोलेंगे सिंपल कॉलुमिनर इपिथेलियम. दिस सिंपल कॉलुमिनर इपिथेलियम कैन बी सिलिएटेड या फिर नॉन सिलिएटेड. इसमें सिलिया प्रेजेंट है तो सिलिएटेड बोलेंगे, अगर सिलिया प्रेजेंट नहीं है तो हम इसको बोलेंगे नॉन सिलिएटेड. नाउ फोर्थ वन इज सीडो स्ट्रेटिफाइड कॉलुमिनर epithelium. Okay, this can be ciliated and non-ciliated. Pseudo stratified columnar epithelium में क्या होती है सिंगल लेयर कॉलुमिनर सेल्स होती है, बट इसको सीडो स्ट्रेटिफाइड इसलिए बोला है, एक्चुअली स्ट्रेटिफाइड का मीनिंग होता है मल्टीपल लेयर्स. ओके, तो ये सेल्स जो है ये मल्टीपल लेयर तो नहीं है, बट इसके अंदर जो न्यूक्लियस की पोजीशन है ना वो डिफरेंट पोजीशन है. कि किसी सेल्स का जो न्यूक्लियस है डाउनवर्ड है, किसी का मिडिल में, किसी का अपवर्ड है. तो दिखने में ये सेल्स होती है, ये जो टिश्यू होता है ऐसा लगता है मल्टीपल लेयर्स है, क्योंकि यहाँ पर जो सेल्स का जो न्यूक्लियस है वो एक स्ट्रेट एक लाइन में अरेंज नहीं है, इसलिए कैसा लगता है ये मल्टीपल लेयर. कॉलुमिनर है इसलिए तो कॉलुमिनर. मल्टीपल लगता है लेकिन है नहीं, सिंगल है, इसलिए क्या बोला सीडो मीन्स झूठा. ओके, तो इसको क्या बोलेंगे सीडो स्ट्रेटिफाइड. इसमें भी ये सिलेटेड हो सकती है या फिर नॉन सिलेटेड ये हो सकती है. This one is the types of simple epithelium tissue. Now next one is stratified epithelial tissue. तो stratified epithelial tissue में क्या होता है, in the stratified epithelial tissue there are the multiple layer of the cells which form the tissue epithelial tissue, that are the stratified epithelial tissue. means epithelial tissue की जो है ये जो सेल्स है इसकी मल्टीपल लेयर अगर है तो हम इसको क्या बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड. तो टाइप्स इसके सेम है, ओनली नेम चेंज हो जाएगा. लाइक द स्ट्रेटिफाइड में क्या मल्टीपल लेयर्स है इसमें सेल्स की. ओके, तो इसमें क्या बोलेंगे अपन स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस epithelium. Okay, stratified squamous epithelium in the sense कि tiles like structure of the cells which are present in the multiple layers. Let's see in this diagram. Okay, यहाँ से भी आपको क्लियर हो जाएगा कि स्क्वेमस सेल जो है टाइल्स लाइक जो स्ट्रक्चर की जो सेल्स है इसकी मल्टीपल लेयर है, तो हम इसको क्या बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम. लाइक दैट सेम इज स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल
इपिथेलियम्स मींस क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है सेल का, बस मल्टीपल लेयर है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेटिफाइड क्यूबैडल इपिथेलियम। नेक्स्ट स्ट्रेटिफाइड कॉलुमिनर, ओके, कॉलम लाइक सेल्स का है स्ट्रक्चर बट मल्टीपल लेयर्स है, तो कॉलुमिनर हो गया। दिस वन कैन बी सिलेटेड एंड नॉन सिलेटेड। नाउ फोर्थ वन दैट इज द ट्रांजिशनल इपिथेलियम। Transitional epithelium. Transitional epithelium means these cells are present in the urinary tract. मीन्स जहाँ से क्या होता है, ट्रांजिशन होता है, मीन्स क्या होता है, यूरिन पास होता है, तो वहाँ पर क्या ये सेल्स प्रेजेंट होती है। दिस वन इज द सिंपल इपिथेलियल टिश्यू। ओके, दिस वन जस्ट सिंपली क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ द सिंपल इपिथेलियल टिश्यू एंड स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियल टिश्यू। मींस इपिथेलियल टिश्यू का क्या है, ये जनरली टाइप्स है। नाउ देयर आर द फंक्शंस ऑफ इपिथेलियल टिश्यू। द बेसिक एंड इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ दिस इपिथेलियल टिश्यू इज द कवरिंग ऑफ द surface of the body like the skin, okay, and the surface of our body organs and form the lining of the internal organs. This is the function of this epithelial tissue. एपिथेलियल टिश्यू का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, हमारी बॉडी को कवर करना, प्रोटेक्शन करना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, ओके, लाइक द स्किन। ओके, हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, ओके, बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उसमें क्या होता है, उसके ऊपर जो कवरिंग है लाइक द सीरस मेम्ब्रेन है, वो किससे मिलकर बनी है, हमारी एपिथेलियल टिश्यू से, तो उसका प्रोटेक्शन करता है, उसकी कवरिंग करता है एपिथेलियल टिश्यू। एज वेल एज हमारी बॉडी के जो हॉलो ऑर्गन्स है लाइक द एलिमेंट्री कैनाल है, हमारी बॉडी की जो कैविटी है लाइक द ओरल कैविटी है, नेजल कैविटी है, आई की कैविटी है, हमारी रेक्टल कैविटी है, एनल कैविटी है, एज वेल एज यूरेथ्रल कैविटी है, वेजाइनल कैविटी है, दैट आर आल्सो फॉर्म बाय द एपिथेलियल टिश्यू। जहाँ पर इसका क्या काम करती है, वहाँ पर जाके सिक्रेशन का फंक्शन करती है। एज वेल एज क्या करता है एपिथेलियल टिश्यू का नेक्स्ट फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ द ग्लैंड्स एंड डक्ट। तो ओके, ग्लैंड्स और डक्ट भी इसी से मिलकर बनी होती है, तो हम क्या बोल सकते हैं, सिक्रेशन ऑफ द एंजाइम्स इज द वन फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एज वेल एज अनदर फंक्शन ऑफ दिस एपिथेलियल टिश्यू इज द सिक्रेशन ऑफ द हार्मोन्स। तो ये कुछ बेसिक फंक्शंस हैं एपिथेलियल टिश्यू के। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे अगेन रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज लाइक और शेयर कीजिए मेरे चैनल को। तो ओके, नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू। थैंक यू।